Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. With greetings for the 74th Independence Day, we welcome you to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि हिंद किसान चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। हरवीर, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। वेलकम हरवीर। थैंक यू राजेश। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। India must become self-reliant and should strive for meeting needs of the world, says Prime Minister Narendra Modi. Country's foreign exchange reserves hit a new all-time high of $538 billion, and U.S. markets end mixed due to disappointing economic data. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनकर विश्व की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $538 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और वॉल स्ट्रीट में निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों के चलते अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुख रहा। Prime Minister Narendra Modi today said India must become self-reliant and use its vast natural resources to produce for the domestic as well as the global market. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort on the occasion of India's 74th Independence Day, Mr. Modi said in the midst of the COVID-19 pandemic, 130 crore Indians have pledged to build an Atmanirbhar Bharat. He expressed confidence that India will realize this dream. The Prime Minister said the country received record foreign direct investment during the last fiscal. He said even during the coronavirus pandemic, big global companies are looking towards India. The Prime Minister reiterated vocal for local call and said that India should strive for meeting needs of the world as well. He wondered how long the country would continue to export raw materials and import finished products. He said India has vast natural resources and need of the hour is value addition. He said the nation has to move forward with the mantra of make for the world along with make in India. He further said Atmanirbhar Bharat does not mean only reducing dependence on imports, but strengthening India's capacity, creativity and skills. Citing an example of what India can do, Mr. Modi said, before COVID-19 pandemic, the country was not making N95 masks, PPE and ventilators, but now it is in a position to export such items.
He said there is a need to give a new direction to the overall infrastructure development of the country to move India towards modernity at a fast pace. He said the National Infrastructure Pipeline project will enable this, and the country is moving towards spending more than 100 lakh crore rupees on this. He said about 7,000 projects of different sectors have been identified to bring new revolution in infrastructure. He emphasized on the need to remove silos, saying that the entire country has to move towards multi-modal connectivity infrastructure. The Prime Minister said self-Atmanirbhar Krishi and Atmanirbhar Kisan are the priorities of an Atmanirbhar India. He said Agriculture Infrastructure Fund of 1 lakh crore rupees has been created recently to give modern infrastructure to the farmers of the country. He said the Jal Jeevan Mission was announced from the Red Fort last year, and now more than 1 lakh houses are getting water connection every day. The Prime Minister said education has a great importance in building self-reliant India. Keeping this in mind, Mr. Modi said a new national education policy was brought in. He said Digital India too has a great role to play in making the nation self-reliant. Mr. Modi said before 2014, only 6 panchayats in the country were connected with optical fiber. In the last 5 years, 1.5 lakh gram panchayats in the country have been connected with optical fiber. The Prime Minister said in the coming 1,000 days, every village in the country will be connected with optical fiber. Prime Minister Narendra Modi also announced the launch of National Digital Health Mission today. He said it will bring a new revolution in India's health sector and all Indians will get health IDs. He said every test, every disease, medicines prescribed by doctors, reports and related information will be contained in this one health ID. Quickly, we would like to know from you, Harveer, the overall impact of the message of the Prime Minister from the ramparts of Delhi. A lot of emphasis, according to me, has been given to Atmanirbhar Bharat, that makes for the world, with high priority on Atmanirbhar Krishi and Kisan. Your comments, please. Yes, very important announcements, and is emphasizing almost each and every critical sector in the sense that we have to be self-reliant and not just produce for ourselves but for the world. And the point is very important that instead of exporting raw material, definitely we must export value-added products and at the same time to produce these products for our consumption also in the country. So there are many takeaways from the speech, like the connectivity to the villages. 6 lakh villages will be connected with optical fiber in next 1,000 days. Means those who are residing in these far-flung rural areas will also have the equal opportunity to get connectivity, high-speed internet. And you know that nowadays, even from education to many things are directly connected with this telecommunication. So these are the very important aspects, and definitely if we go to achieve these goals, we will have a lot of job will be created in this process, and will give an opportunity to billions of people. Yeah, Harveer, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कृषि के बारे में कहा, किसानों को उनकी उपज के लिए और बेहतर बेचने के लिए जहां और निर्यात के लिए जो सुविधाएं दी गई उनकी बात की, तो आपको और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई, तो इन सारी चीजों से आपको क्या लगता है कि कृषि पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, कृषि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक। गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस निकाले कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मार्केट है उसको रिवोल्यूशनाइज करें और फार्मर्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएं। वो एक स्टेप है। एक स्टेप है कि किस तरीके से फार्मर या उनके ग्रुप या
एंटरप्रेन्योरशिप जिनके अंदर है वो सब मिलके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए क्रिएट करें। उसके लिए जो 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट का डेडिकेटेड एफर्ट है, क्योंकि वो एक तो उसमें डिफाइंड है किस चीज के लिए है, प्लस उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, और ये बैंक्स डायरेक्ट एमओयू कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में कि ये हम इसी काम के लिए लैंड करेंगे। तो ये स्पेसिफिक लैंडिंग अप्रोच, इसको अगर कामयाब हम कर लेते हैं तो ये एक बड़ा चेंज लेकर के आएगी। और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। जी सर, जैसे आज ना मोदी जी ने कहा कि भाई, और अभी राजेश जी ने भी न्यूज में पढ़ा है कि सरकार ना एक डिजिटल हेल्थ कार्ड इशू करने जा रही है, जिसमें हम जो भी मेडिसिन लेंगे, जो भी डॉक्टर से दवाई लेंगे, उसका सारा डायग्नोज उसके अंदर मेंशन होगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार के पास ऐसी भी कोई व्यवस्था है जिस रेवेन्यू को लेके इसी तरह के कि भाई हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, किसको पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन हो। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया जा रहा था कि सरकार बड़ी जल्दी ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें पेपर करेंसी नहीं होगी, सारा ऑनलाइन होगा। अगर हमें करेंसी चाहिए होगी तो हमें पहले बैंक में एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, तब हमें करेंसी मिलेगी। जैसे हम 10 लाख से ऊपर पैसे लेने होते हैं बैंक में, तो हमें सवाल पूछे अपना सवाल। यही सवाल था कि ऐसी कोई व्यवस्था वो भी रेवेन्यू को लेके भी है क्या? नहीं, देखिए, अगर अभी आपने पिछले दिन अनाउंसमेंट देखा हो गवर्नमेंट का, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब वो एक सर्टेन लेवल के एक्सपेंडिचर के बाद आपके एक्सपेंसेस की डिटेल देगा। अब ये जो फॉर्म 16 आता था, उसमें जो उसका नया प्रारूप है, उसमें ये है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं कुछ मदों में, वो अब आपके एक्सपेंसेस उसमें डिटेल होके अभी से आना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रैकिंग तो हो रही है, ऐसा नहीं कि, बट नॉट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, वो संभव भी नहीं है, क्योंकि करोड़ों अरबों ट्रांजेक्शन्स होती हैं छोटी छोटी, तो उसको सबको ट्रैक करना संभव नहीं है। लेकिन एक लेवल के ऊपर जो है उसमें ये संभव है, और ये अनाउंस भी किया है, और अभी ये आपका ट्रैकिंग में ये रिकॉर्ड आएगा। और मुंबई से हमारे श्रोता परिमल लाइन पे हैं। परिमल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी सवाल पूछिए। ओके सर, मैं पूछना चाहता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है शेयर मार्केट में कि आप सबको चले तो नमस्कार सबकी पूरा टीम को, कि एक सिंपल सा सवाल ये है कि शेयर मार्केट में बोलते हैं ये शेयर इतना टारगेट है, और वो जो टारगेट अगर क्या होता है और टारगेट में पहुंचता है तो फिर वो प्राइस रुकता क्यों नहीं है। और सेकंड थिंग है, अगर टारगेट कंपनी का टारगेट है तो बाहर का एक्सपर्ट लोगों को कैसे मालूम पड़ जाता है कि कंपनी में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो इन लोगों को कैसे पता चल जाता है। ये दो खरी एक सवाल था। नहीं, देखिए, ऐसा कोई शेयर प्राइस के लिए कंपनी तो अपना टारगेट अनाउंस करती नहीं है, तो मार्केट है, मार्केट डिसाइड्स कि सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, वो तय करता है कि किसी शेयर को किस तरीके का प्राइसिंग होगा। और जो ब्रोकर फर्म्स हैं या जो उस तरीके के इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स हैं, वो एक जो उनके पास अवेलेबल डाटा या इंफॉर्मेशन है, मार्केट की है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी की है, वो सबको मद्देनजर करके ओनर का जो एनालिसिस है टेक्निकल, उसमें लोग टारगेट बनाते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है। इस पे आप इसका देख सकते हैं अपना कि लेवल तक जाने के बाद आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह होता है, कंपनी कैन नॉट फिक्स द टारगेट। From Mumbai, we are joined in by Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि समझो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम इज जीएसटी। तो अभी जीएसटी का जुलाई और महीने का कैसा कलेक्शन है। और दूसरा सवाल है कि जो जभी रिजर्व बैंक डिविडेंड के स्वरूप में गवर्नमेंट को जो अनाउंस किया है 57,128 करोड़ रुपए देने वाली है, तो ऐसे जभी आरबीआई का ऐलान होता है तभी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म उस पर होता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि आरबीआई देती है वो जो डिविडेंड वो सही है क्या नहीं? थैंक यू।
देखिए, तो एक तो जो आरबीआई का अभी जो जीएसटी कलेक्शन है वो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी डाउन रही हैं और अब धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये पिछले साल से कम रहा है। एक तो जीएसटी अलोन नहीं है ना हरवीर जी, वो इनकम जो है जीएसटी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली इनका पर्पस इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही ज्यादा था, तो बट इट हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। तो ये है। दूसरे इनका ये है कि आरबीआई, जाहिर सी बात है, वो लीगली उसके लिए प्रावधान है, तभी आरबीआई अपनी जो इनकम है उसमें से गवर्नमेंट को डिविडेंड देता है, और उसी में ये उन्होंने दिया है पैसा अभी भी। बट ये पीछे काफी इसके ऊपर उस चर्चा चली थी पॉलिटिकली कि आरबीआई ने अपने जो रिजर्व्स हैं उसमें से गवर्नमेंट को दे सकता है नहीं दे सकता था, और उसमें एक कमेटी बनी थी, तब डिसीजन हुआ तो आरबीआई ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था। सो डेफिनेटली आरबीआई इज ऑल्सो देश का ही है, और उसमें कुछ अगर जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ही उसने दिया है, ऐसा अलग से नहीं है। और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे हैं। रमेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से रमेश कतूरिया बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एवरेजिंग ऑफ स्टॉक। जैसे कोई शेयर हम खरीदते हैं और काफी डाउन चला जाता है, तो हमें क्या एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस स्टेज पे? ये स्टॉक आपने किस लेवल पे खरीदा और किस तरीके का मार्केट है, फ्यूचर का, उस कॉर्पोरेट का, उस कंपनी का, या उस सेक्टर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये आपको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, और अगर कंपनी या सेक्टर ठीक कर रहा है उसके बावजूद स्टॉक्स नीचे हैं, कोई दूसरे उसके पीछे सरकमस्टांसेस या डेवलपमेंट्स हैं, तो यू कैन वेट। और ये फिर आपका होल्डिंग कैपेसिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, या फिर आपने एक इंडिविजुअल कंपनी के अलावा और किस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है, कहाँ आपको उस पर बेहतर रिटर्न की गुंजाइश है, उसका क्या कंपैरिजन है। इससे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर्स ओन एंड विद द मार्केट की कंडीशन और डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये आप तय कर पाएंगे उसमें कि कहाँ आपको उसमें से एग्जिट करना चाहिए। From Delhi, we are joined in by R.P. Upadhyay. We welcome you. Please ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर, पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। आपको भी। हाँ। सर, मेरा एक सवाल है कि पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म फोर्सेस के सब जगह सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सभी में इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी जो रिटायरमेंट की एज है 35 से 45 साल तक की होती है। जो औरों को जो बीआरएस लेते हैं तो उनको 50 साल के बाद में 0.50% ब्याज ज्यादा दिया जाता है, तो इन लोगों को 50 पे पहुंचते ही नहीं है, तो इनके लिए क्या सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? ये इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये तो सरकार की जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी है उससे रिलेटेड है। इसमें कोई और इस तरह की पॉलिसी में कोई बहुत जल्दी कोई इस तरह के चेंजेस नहीं होते। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इन क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके के डिसीजन लेती है, और पीछे डिसीजन लिए भी गए हैं, कई बदलाव हुए हैं, बट वो उनका एज क्राइटेरिया किस एज पे रिटायर होना है उनको, और फिर उनके जो बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वो सारा तय है। तो वो इतना इजीली उसको ये नहीं हो सकता कि उस पर कोई बदलाव आ जाए। बट पीछे अब देखेंगे 1 रैंक 1 पेंशन का एक बड़ा डिसीजन इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, और फिर ये कमीशन, विमेन्स का कमीशन को लेकर के भी आर्मी में डिसीजन हुए हैं। तो मल्टीपल डिसीजन, बट वो बहुत सारे चीजें देख करके उसके बाद तय होता है, इसलिए इसमें हमको बहुत ज्यादा आपको उम्मीद नहीं दे सकते कि क्या किया जाएगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा टीम को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत जी आपको भी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया उसमें बताया कि कुछ ऐसी
ट्रांजैक्शन करने पे जो हमें हमारे 26 AS में या फॉर्म 16 में रिफ्लेक्शन होगा, जैसे होटल के बिल हैं या दूसरे मेडिकल इंश्योरेंस है, तो सर इसका क्या हम जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका हमारे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं ये जानना चाहता था। देखिए, रिटर्न के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जो आपकी इनकम है उनको आपने ट्रांसपेरेंटली कैलकुलेट किया है, शो किया है, और जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपने पे किया है, तो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट गवर्नमेंट अभी देखिए कि उसमें इस तरह के जो बड़े एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। पहले भी ट्रैक किया जाता था, लेकिन अभी इसको और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रैक किया जाएगा। अगर कोई वो इनकम को हाइड करेगा और उसके जो एक्सपेंसेस हैं ये दोनों मैच नहीं करते, उस केस में फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपने जो पे किया है वो उससे अलग बनती है। तो वहां पर फिर उसके ये एनालाइज किया जा सकता है, जांच हो सकती है। तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको इस सब की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सबको, और जाहिर सी बात है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है आपको पे करना चाहिए। हर नागरिक का ये एक जिम्मा बनता है। जी, और थाने से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर पहले तो मेरा सवाल ये है कि जो टैक्स चार्टर गवर्नमेंट ने लाया है, ये जो टैक्स चार्टर गवर्नमेंट ने लाया है, ये जो टैक्स चार्टर की अभी कोई डिटेल ज्यादा बाहर नहीं की है गवर्नमेंट ने। इसका गवर्नमेंट ने क्यों किया कि आपने ला तो दिया, लेकिन आपने उस चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। और फेसलेस अपील और फेसलेस और कुछ असेसमेंट, ये दोनों चीज क्या होती है आप इसके बारे में बताएं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस समय मार्केट बढ़ भी रहे हैं और मार्केट घट भी रहे हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी का जो ये सिचुएशन है कि मार्केट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स लोग बोलते हैं, एनालिस्ट, ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है जो होती है, और जब गिरता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये मार्केट गिर रहा है, थोड़ा सा अच्छा होगा, प्राइसेस कम होगी। तो एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, जी ठीक है, कहते हैं कि गिर रहा है तो अच्छा है। जी आदित्य जी, ठीक। हरवीर जी, देखिए, टैक्स चार्टर आना तो अच्छी बात है क्योंकि उसमें बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी होगी, और ये फेसलेस का मतलब है कि आप ऑनलाइन पे जाकर के अपने ग्रीवांस वो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नोटिस है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, और सारा ऑनलाइन ये काम हो जाएगा। आपको किसी इंडिविजुअल के पास ऑफिस में जाके अपना केस प्लीड नहीं करना। इसमें ये भी है कि आपका जो अगर जाएगा केस किसी को, तो वो दूसरे स्टेशन के आदमी को जाएगा, लोकल को नहीं जाएगा। तो बेसिकली ये एक करप्शन को कंट्रोल करने का एक प्रयास है कि उसमें गुंजाइश जो है उसको खत्म किया जाए। और दूसरी ये भी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा गया है, और ज्यादा से ज्यादा जो ये कैलकुलेशंस और इवेल्युएशन जो है वो ऑटोमेटिकली होगा। जो उसके प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या इनकम है आपकी, क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, और आपने पे किया या नहीं किया, तो वो सारा कंप्यूटर विल एनालाइज ऑटोमेटिकली, और ये सेट प्रोसेस में आपको पता लग जाएगा। बाकी ट्रांसपेरेंसी का मैंने आपको बताया है। और ये जो आपका मार्केट तो वोलेटाइल होने का बहुत सारी वजह है। जैसे मार्केट बढ़ने की बात सही है कि लिक्विडिटी है तो उसमें गया है, बट अभी थोड़ा आप देखेंगे कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा ये है कि जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत फेवरेबल नहीं है। तो अभी अगर इसी हफ्ते हम देखेंगे कि जो वीक खत्म हुआ है उसमें जो ग्लोबल इंडिकेशन है उसके पॉजिटिव नहीं रहने से मार्केट पे इम्पैक्ट आया। और अभी जो कोविड का जो ये है इन्फेक्शन का, वो अभी भी जारी है, उसके नंबर्स काफी आ रहे हैं। तो ये रिकवरी को लेकर के जो अनसर्टेनिटी का एक है, डर रहता है कि फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, ये सारे इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर आते हैं। Preetham from Pune joins us. Preetham, we welcome you. Hello. Please go ahead and ask your question, Preetham. Hello. सवाल पूछे अपना प्रीतम। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हेलो। प्लीज सवाल पूछे, आपकी आवाज हमको आ रही है। हाँ मेरा एक सवाल है, मिडिल क्लास लोग किसे देते हैं? हेलो। 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 जी लग रहा है हमारा संपर्क भंग हो गया है। चलते हैं अगली हेडलाइन स्टोरी की तरफ।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 538 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और ये 492 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां देश के कुल मुद्रा भंडार में शामिल हैं। सोने का भंडार 2 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़कर 39 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के विशेष आहरण अधिकार में 60 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और अब यह 1 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गया। And in the US, trading on Wall Street was subdued yesterday as doubts crept in about a new US stimulus bill, while the S&P 500 ended nearly flat below record highs as a swathe of domestic data showed the economy was still smarting from the COVID-19 pandemic. So the Dow Jones Industrial Average rose 34 points or 0.1% to 27,931. The S&P 500 ended flat at 3,373 and the Nasdaq Composite dropped 23 points or 0.2% to 11,019. For the week, the S&P 500 rose 0.6%, the Dow added 1.8% and the Nasdaq gained 0.1%. Adding to recent uncertainty, the prospects of more fiscal aid have faded with the Senate and the House of Representatives in recess and no fresh talks scheduled. And separately, readings showed that U.S. factory output increased more than expected in July but remained below pre-pandemic levels, while consumer sentiments was largely steady in the first half of August. और चेन्नई से हमारे श्रोता चंद्रकांत लाइन पे हैं। चंद्रकांत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ साहब, मेरा नाम चंद्रकांत सोलंकी है, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ जी। अभी नया जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के लिए ISIN नंबर देना पड़ता है। जी जी। मैंने UTI रिटायरमेंट फंड में रिटायरमेंट एंड बेनिफिट फंड में इन्वेस्टमेंट किया था और रिडीम किया हूँ और मेरे को पैसे भी आ गए हैं। बट UTI पीपल सेज दैट सिंस दिस फंड इज नॉट cannot be dematerialized form, so there is no ISIN number. So in that event, what should I do? So वो देखिए उसका एक सनसेट क्लोज होगा, आप उसके हिसाब से अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। Keshav from Mumbai now joins us. Keshav, we welcome you. या गुड इवनिंग सर। Good evening. Please quickly ask your question. या हम रिटर्न फाइल करते हैं, हमारे एसेट जो है अनाउंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट अनाउंस करते हैं, सब करते हैं हर साल। लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों को जो राजनेता है उनको कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि उनके एसेट डिक्लेयर करे, वो कभी रिटर्न फाइल करते हैं। Okay, Keshav, we've got your point. Yes, everyone does that. देखिए पॉलिटिशियन होने के अलावा हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है और उनके भी एसेट डिक्लेरेशन जब वो लोग कंटेस्ट करते हैं तब भी होता है और एनुअल रिटर्न फाइल करने का प्रक्रिया सबके लिए बराबर है जी। तो वो भी अगर उनका जो भी इनकम है तो वो उनको शो करना ही पड़ता है और जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उनको देना ही पड़ता है। हमारे श्रोता मोदी नगर से अशोक जी हमारे साथ हैं, लेकिन समय के अभाव में हम उनका सवाल नहीं ले पाएंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ICICI बैंक से जुड़ी ये खबर, देश के दूसरे निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने आज बताया कि उसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के तहत इक्विटी शेयरों का आवंटन पूरा कर लिया है और इस तरह 15,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। And before we close the headlines once again, India must become self-reliant and should strive for meeting needs of the world, says Prime Minister Narendra Modi. Country's foreign exchange reserves hit a new all-time high of $538 billion and US markets end mixed due to disappointing economic data. That's all we have in this edition of Markets. Namaskar, till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.
Market Mantra.